Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject PT chapter number 9 high jump यानी ऊंची कूद. High jump. Among all the track and field events, high jump exhibits unique position. Skills for high jump are developed repeatedly and many changes have taken place in the skills of high jump. In the high jump, an athlete comes running, take off on a stronger leg, lifts the body in the upward direction, cross the crossbar and lands on the feet. ખેલકૂદ પ્રવૃત્તિમાં ઊંચી કૂદ આગવું સ્થાન ધરાવે છે. यानी खेलकूद में सबसे ज़्यादा जो है ऊंची कूद जो है प्रथम 1 नंबर पे आता है. ઊંચી કૂદના કૌશલ્યનો વિકાસ ઘણો ઝડપથી થાય છે. એની ऊंची कूद करने से जो विकास होता है वो बहुत स्पीड में बढ़ता है અને તેના કૌશલ્યમાં પણ ઘણા પરિवर्तन આવે છે. એની ऊंची कूद करने से जो क्या बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं. ऊंची कूद में खिलाड़ी दौड़तो આવી એક પગ ટેકે લઈ શરીરના ઉર્ધ્વ દિશામાં ઉચકી આડા વાંસને ઓળગી ખાડામાં उतरण करे छे. यानी हाई जंप करने के लिए जो है एक खिलाड़ी जो है वो दौड़ते हुए आता है और एक पैर का टेका लेके और वो जो क्या कहते हैं बांस लगे रहता है उसको वो अपवर्ड करता है. यानी अपवर्ड यानी दूसरी एक दिशा से दूसरी दिशा में यानी दूसरी दिशा में वो छलांग मारता है. क्रॉस द बार. इन हाई जंप, if the athlete wants to jump higher, the parts of the body below the waist should be turned upward from raise the center of gravity of the body as high possible in air. Thus, in high jump, lifting the body in the direction of opposite head, the force of gravity, maintaining the proper positions of the body have great importance. ઊંચી કૂદમાં હાઈ જમ્પમાં વધુ ઊંચાઈએ કૂદવા માટે શરીરનો કમરથી નીચેના ભાગને ઉપર તરફવાળી જેમ બને તેમ શરીરનો ગુરુત્વ મધ્ય बिंदु शक्य तेटલું ऊंचाई लावा प्रयत्न करवा જોઈએ. यानी हाई जंप करने के लिए जो है कमर से जो बॉडी पार्ट रहता है उसको जो है हमको क्या कहता है उसके थ्रू जो है वो हाई जंप हमको करना रहता है. ઊંચી કૂદનો પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બાળની વિરુદ્ધ यानी जो ये बांस जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो रहता है क्रॉस बार रहता है, इसको कूदने के लिए जो हमको हमारी बॉडी को एकदम मेंटेन रखना पड़ता है और उस तरह से जो है वो दौड़ते हुए आते हैं और इसका क्रॉस बार के साइड जो है वो जंप मारते हैं. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें पिक्चर दी है हाई जंप ग्राउंड इक्विपमेंट. अब अप्रोच रन. मिनिमम लेंथ ऑफ अप्रोच रन इज 15 मीटर्स. लेंथ ऑफ अप्रोच रन for Olympics and international competition is kept to 20 to 25 meters. यानी दौड़ मार्ग में जो ये इसकी जो अप्रोच रेंज की जो लंबाई होती है तो वो कितनी 50 मीटर्स होती है और ओलंपिक्स के गेम में या इंटरनेशनल गेम में जो 20 to 25 मीटर्स होती है. फ्रॉम द uprights of high jump an area of 15 meters reduced in ground and the entire area to be used as the approach run is leveled. ऊंची कूदनी अपराइट्स यानी जो एरिया होता है वो 15 मीटर्स
ત્રીજાવાળા ચાપ દોરી સમગ્ર प्रदेशને दौड़ मार्ग जैसे यानी जो चिकुत का जो ये ऊंचाई होता है वो 15 मीटर्स की होती है। पिट यानी खाड़ो। लेंथ इज 5 meters and width is 4 meters. Instead of filling the pit, the wet sand rubber foam is used for safety. अब पिट यानी खाड़ो, उसकी लंबाई जो है 5 मीटर यानी चौड़ाई जो है उसकी 4 मीटर होती है। सलामत उतरण माटे रेतेली भरेला खाड़ानी जगह या जैसे कि जब हाई जंप करने का रहता है तो जब जंप मारते हैं तो या तो जो एक खड्डा खोदा जाता है या तो वो खड्डे में रेती भरी होती है या तो हम रबर का भी यूज़ कर सकते हैं कि ताकि उससे जब हाई जंप करें तो उससे हमारी बॉडी को या हमको कोई चोट ना पहुँचे, कोई ईजा ना हो। इक्विपमेंट uprights. They shall be sufficiently high as to exceed the actual highest to which the crossbar is raised by at least 10 cm. The distance between the uprights shall be not less than 4 meters, not more than 4.4 meters. अब जो है अपराइट्स यानी ઘોડીઓની ઊંચાઈ સ્પર્ધા દરમિયાન વધુમાં વધુ ઊંચાઈએ વાંસ મૂકવામાં આવે તો પણ 10 સેન્ટીમીટર જેટલા છેડાઓ બાકી रहे તેટલી ऊंचाई રાખી શકાય। यानी जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं इसकी जो यानी इसकी जो लंबाई होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई रखते हैं। The distance between the uprights shall be not less than 4 meters, not more than 4.4 meters. यानी બે ઘોડીઓ વચ્ચેનું અંતર ઓછામાં ઓછા यानी दो जैसे कि दिया है कि दो अपराइट्स के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीटर्स या 4.4 मीटर्स की उसके अंदर बीच में डिस्टेंस होता है। क्रॉसबार। The crossbar shall be made of wooden or other suitable materials. The overall length of the crossbar shall be 3.98 meters to 4.02 meters. The maximum weight of the crossbar shall be 2.0 kg. The diameter of the circular part of the crossbar shall be 2.9 centimeter to 3.1 centimeter. The end pieces shall be square in shape. अब क्रॉसबार यानी આણો વાંસ એની જો क्रॉसबार लाकड़ा अथवा कोई पर धातुમાંથી બનાવવામાં આવે છે। यानी जो क्रॉसबार होती है वो लकड़े में से या कोई धातु में से बनाने का आता है। तेनो आकार गोल होय छे, उसका आकार जो है क्या होता है वो गोल होता है। અને क्रॉसबार उसकी लेंथ जो है वो 3.98 मीटर्स से लेके 4.02 मीटर्स की होती है और मैक्सिमम वेट उसका जो है 2 kg होता है और डायामीटर सर्कुलर पार्ट यानी गोळाનો व्यास यानी 2.9 सेंटीमीटर टू 3.1 सेंटीमीटर होता है। અને બંને છેડાઓને ચોરસ રાખવામાં આવે છે और दोनों छेड़े को जो है वो क्या है वो चौरस स्क्वायर टाइप रखा जाता है। सपोर्ट ऑफ क्रॉसबार। क्रॉसबार ना टेका। सपोर्ट्स ऑफ क्रॉसबार shall be 4 centimeter wide and 5 centimeter long with rectangular shape। अब जो क्रॉसबार का जो टेका होता है तो वो 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 5 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होता है और उसका आकार जो कैसा होता है वो लंबचौरस यानी री ट्रायंगल का शेप होता है। स्किल है
Number 1 approach run, number 2 take off, number 3 bar clearness, number 4 landing. Now let us discuss these skills in detail. यहाँ पे जो है 4 पॉइंट दिए हैंगे. अब ये 4 पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नंबर 1 पॉइंट अप्रोच रन यानी आगम दौड़. फॉलोइंग आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड इन अप्रोच रन. यानी अप्रोच रंज की जो डिटेल्स है वो नीचे दी हुई है. डायरेक्शन दिशा. द डायरेक्शन टू बी टेकन बाय द एथलीट डिपेंड्स ऑन द स्टाइल दैट द एथलीट्स and intend to adopt in the scissor style, stunt cut off style, Fosbury flop style. The take-off leg is placed on the outside away from the crossbar compared to the free leg, so an athlete who takes off and the right leg will have to come to the take-off point from the left side. While in the western roll and straddle style, as take-off leg is coming towards the crossbar, the athlete will have to come running from the right side. अब जो इसमें दिशा बताया है कि કૂદવા માટે ખેલાડીઓ કઈ દિશામાંથી આગમ દોડ લેવી તેના આધાર ઊંચી કૂદના વાસ अड़ंग पद्धति पर रहें छे. यानी खिलाड़ी को जो है कूदने के क्या कहते हैं हाई जंप करने के लिए जंप मारना है तो उसको कौन सी दिशा से आना है इसका जो है वो क्या कहते हैं नक्की कब करेगा कि जब वो जो वास जो है एथलीट जो है वहाँ पे जहाँ वो लगा है उसके ऊपर वो डिसाइड करेगा कि मुझे कितनी दूर से दौड़ के आना है. अब इसके अंदर जो है इन अलग अलग पद्धति दी है. इन द सीजर स्टाइल यानी कातर पद्धति, एस्टन कट ऑफ स्टाइल यानी पूर्य कार्य कप पद्धति અને ફોસબેરી ફ્લોપ સ્ટાઇલ, ફોસબેરી ફ્લોપ પદ્ધતિ. The take-off leg is placed on the outside यानी अपना पैर जो है पहले सरखामणी वाँसથી दूर બહારની બાજુ આવે છે. यानी टेक हमारा पैर जो है पहले वाँस से थोड़ी दूर थोड़ा हमारे पैर को जो है क्या करना पड़ता है वो आउटसाइड टेक देना पड़ता है अवे फ्रॉम द क्रॉस बार यानी क्रॉस बार के बाहर जो है टेक देना पड़ता है कंपेयर टू द फ्री लेग. और फिर जो है पैर को जो है फ्री करना पड़ता है. आથી જમણા પગે ટેક લેનાર ખેલાડીઓ ડાબી બાજુથી આગમ દોડ કરવી પડશે. यानी लेफ्ट से पैक से अगर टेक लेना है तो वो ડાબી બાજુથી वो दौड़ते हुए आएगा. અને જ્યારે પશ્ચિમ ગબડના પલાળ પદ્ધતિમાં ટેક પગ પાંચ તરફ આવતો હોવાથી ખેલાડીઓ જમણી બાજુથી આગમ દોડ કરવી પડશે. यानी अगर हमको जैसे लेफ्ट एंड राइट दोनों पैर का इस्तेमाल करना है तो अगर हम राइट पैर का इस्तेमाल करेंगे तो हमको इस तरह से नहीं जमनी बाजू से आना होगा. इस तरह से नहीं दिया है कि दोनों पैर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. द एंगल फॉर द रन. द एंगल ऑफ द बॉडी फॉर्मेड at the take-off mark with the cross while running towards the sides of the uprights in the direction of approach run is called the angle. Approach run, this angle is different various styles of high jump. Generally, the athlete arrives at the angle 39 ounce to 45 ounce. अब ये दिया है द
એંગલ એની ખૂણો. આગમ દોડ દિશા તરફની ઘોડી બાજુથી આડા વાસ સાથે ટેક નિશાન પાસે થતા ખૂણોને આગમ દોડનો ખૂણો કહેવામાં આવે છે. વાસ ઓળંગની જુદી જુદી પદ્ધતિઓમાં ખૂણો જુદો જુદો હોય છે. સામાન્ય રીતે 39 થી 45 સુધી ખૂણે આગમ દોડ કરવામાં આવે છે. यानी जो उसके एंगल होता है तो वो अलग चारों एंगल जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि कूदने की जो पद्धति, हाई जंप करने की जो स्टाइल होती है तो वो अलग अलग होती है. जैसे मैंने आपको बताई थी ऊपर, सीजर स्टाइल, वेस्टर्न कट ऑफ स्टाइल, फोर्सबेल स्टाइल, तो इस तरह से अलग अलग स्टाइल होती है. तो इसके लिए जो उसके एंगल भी जो होते हैं तो वो अलग चार जुदा जुदा होते हैं. जैसे जनरली उसके एंगल जो है वो कितने होते हैं, 39 to 45 अंश होते हैं. द डिस्टेंस, अब इसके अंदर डिस्टेंस कितना रखना है, द आफ्टर डिसेंडिंग द डायरेक्शन एंड द एंगल ऑफ द अप्रोच रन द एथलीट has decided the distance he will run before taking off. Generally athletes excused the takeoff after conveying distance to the 12 to 15 meters અને 7 to 9 strides. આગમ દોડની દિશા અને ખૂણો નક્કી થયા પછી કેટલા અંતર દૂરથી દોડતા આવીને ટેક લેવી તે નક્કી કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ખેલાડીઓ 12 થી 15 મીટર દૂરથી આગમ દોડ કરે છે. અંતર મોટા ભાગે 7 થી 9 કદમોમાં પૂરું કરે છે. यानी पहले जो है अप्रोच और एंगल नक्की करने के बाद जो है खिलाड़ी को कितने सेंटीमीटर से दौड़ के आना पड़ता है उसका नहीं फिक्स करना पड़ता है. तो 12 से 15 सेंटीमीटर क्या कहते हैं उसको करना है, और कितने कदमों में, 7 से 9 कदमों में वो 12 से 15 सेंटीमीटर उसको फिनिश करना होता है. नंबर 2, टेक ऑफ. The athlete first makes a mark on the ground at the proper distance from the uprights and the crossbar. He takes this measurement with his arm. The mark is for athletes is as his takeoff marks, taking care not to obstruct the speed obtained during the run-up. The athlete touches the takeoff mark first with the heel of his takeoff foot, takes off and lifts his body in the upward direction. The last stride in the run up is longer and touches the take-off marks first with the heel of his take-off foot. Slightly bends the knee of take-off leg. Center of gravity of the body will be slight back and downward. Because of the momentum of the body, it will be pushed forward when the toe of the take-off leg touches the ground, and this time, if the arms is swung from the down to the upward direction, and if the free leg is stranded with a swing, it will be easier for the athlete to lift his body effectively in the upward direction. In short, combinations of lifting ability of take-off foot, swing of free leg and upward motion of both the arms will lift the body effectively in the upward direction. ટેક ઓફ. ટેક માટે प्रथम ટેક નિશાન નક્કી કરવું જરૂરી છે. यानी ટેक के लिए जो है सबसे पहले क्या है, निशान નક્કી करना ज़रूरी है. જે બાજુથી આગમ દોડ કરવાની હોય તે બાજુને ઘોડીથી અને ક્રોસ બારથી ખેલાડીના પૂરા હાથનું માપ લઈ જમીન પર નિશાન કરવું. यानी जिस भाग से जो है
उसको भागना है तो उसके मेज़रमेंट जो है उसको सबसे पहले उसका मेज़रमेंट लेके उसको निशान लगाना पड़ता है। आ निशान તે खिलाड़ी માટે ટેગ નિશાન કરશે। ये निशान जो है खिलाड़ियों के लिए करा जाता है। આગમ દોડ દ્વારા મેળવેલ ગતિમાં અવરોધ ના થાય તે રીતે ટેગ નિશાન પર ટેગ પગની એડી પ્રથમ અડકે તેમ લઈ શરીરને ઉર્ધ્વ દિશામાં ઉચકાવવામાં આવે છે। यानी वो निशान इसके लिए लगाता है कि जब क्या कहते हैं खिलाड़ी जो है वो दौड़ता हुआ आता है तो वो निशान इसके लिए वहाँ लगाते हैं कि ताकि वो अपना पैर वहाँ पर टेक के जो है वो फिर वो क्रॉस बार यानी हाई जंप लगावे। इसके लिए આગમ દોડનું છેલ્લું કદમ પ્રમાણમાં મોટું લઈ ટેક પગની એડી ટેક નિશાન પર મૂકી ટેક પગને ઘૂંટણામાંથી વળવો। यानी जब टेक ऑफ लेना होता है तो जो लास्ट कदम होते हैं तो वो बड़ा लेना पड़ता है। वहाँ पे एक टेक लेके और फिर डायरेक्ट हाई जंप करना पड़ता है। शरीरનું गुरुत्व केंद्र सहज पाछड़ तथा नीचे રહેશે। यानी जो शरीर का जो भाग जो है वो नीचे रहेगा और जो कमर का भाग रहता है वो डायरेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। शरीरને ગતિને લીધે શરીર આગળ ધકેલતા ટેક પગની પંજો જમીનને અડકશે। यानी जब वहाँ पर हाई जंप करके जो है सबसे पहले उसका पंजा जो है वो ज़मीन पे टच होना चाहिए, टोए जो है वो ज़मीन पे टच होना चाहिए। आ वखते हाथनो नीचे उपरथी तरफ झोलो लेवो तथा मुक्त पगने नीचेथी ऊपर झोलो साथे सीधा करवामां आवता। यानी हाथ जो है एकदम स्ट्रेट कर देना होता है। शरीर ने ऊर्ध्व दिशा में उचकाववामां सफलता मळे छे। टूंकमां टेक पगनी पाछळ शक्ति, मुक्त पगनो झोलो तथा बंने हाथनी ऊपर गति आ त्रणेय परिबळनो समन्वयथी शरीरने ऊर्ध्व दिशा में असरकारक रीते उचकी सके। यानी अपनी बॉडी को जो है वो एकदम वो लूज छोड़ देना पड़ता है। दोनों हाथ सीधे होते हैं और फिर वो हाई जंप करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट्स, बार क्लियरनेस। Now third point, bar clearness. The action of passing of the body successfully over the crossbar is also as important as takeoff. The positions of the body while clearing the crossbar plays an important role in crossing the bar. Positions of body depends on different styles of bar clearness in high jump. Different styles of bar clearness are as follow. Number 1, scissor style. Number 2, Western cut off style. Number 3, Western roll off style. And number 4, straddle style. And number 5, Fosbury flop styles. એની વાસ ઓળંગ એની ટેક લીધા પછી શરીરને વાસ પરથી સફળતાપૂર્વક પ્રસાર કરવાની ક્રિયા ખૂબ જ અગત્ય છે। यानी टेक लेने के बाद जो है जो क्रॉसबार जो है वो हाई जंप करना पड़ता है तो वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट टेक ऑफ होता है। टेक ऑफ लेने के बाद the position of the body while clearing the crossbar by plays an important role in કે આળા વાસને ઓળંગવા માટે વાસ ઉપરની શરીરની સ્થિતિ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે। શરીરની આ સ્થિતિનો આધાર ઊંચી કૂદને વાસ ઓળંગની વિવિધ પદ્ધતિઓ પર રહેલી છે। यानी क्रॉस बार करने की जो मेन इम्पोर्टेंट रहता है तो जो क्रॉस बार करना ही मेन इम्पोर्टेंट होता है और उसकी जो है अलग अलग स्टाइल होती है कि जैसे कि यहाँ पे दिया सीजर स्टाइल, वेस्टर्न कट ऑफ स्टाइल, वेस्टर्न रोल ऑफ स्टाइल, स्ट्रेडल स्टाइल
और फॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल्स। Number 4, landing. While coming down towards the ground from the height of the crossbar, landing is done in such a way that reaction of the push is minimized and the landing is safe without causing an injury to the body. The action of landing will be different according to the different styles adopted by athletes. अब जो है यहाँ पे लैंडिंग यानी पहले टेक लिया गया, उसके बाद जो है क्रॉसबार यानी क्रॉसबार करा जाता है। अब टेक ऑफ, अब उसके बाद जो है लैंडिंग, कि लैंडिंग किस तरह से करना चाहिए कि વાંસની ઊંચાઈથી જમીન પર આવતા શરીરના વાંસની ઊંચાઈથી જમીન પર આવતા શરીરને ધક્કો પ્રત્યે धात नहीवत बनावी शरीर ने ईजा ना થાય। यानी जब क्रॉसबार का हाई जंप लेने के बाद जो है शरीर को हमको लैंडिंग करना पड़ता है, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमको कुछ इंजरी ना हो, हमको कोई चोट ना हो। ઉત્તીર્ણ ક્રિયાની જુદી જુદી પદ્ધતિઓમાં જુદી જુદી હોય, यानी जैसे कि मैंने आपको बताई कि ऊपर सीजर स्टाइल, वेस्टर्न कट ऑफ स्टाइल, यानी ये स्टाइल होती है। तो फिर जो लैंडिंग करने की भी जो स्टाइल है ना वो डिफरेंट होती है। कतार पद्धति में टेक पर अथवा घणी वखत बंने पग पर उतरण थाय। पूर्य काप पद्धति में टेक पर पश्चिमी गबड़, यानी जैसे कि मैंने आपको सीजर स्टाइल बताई, तो सीजर स्टाइल में जो है वो पैर पे लैंडिंग किया जाता है। फिर वेस्टर्न कट ऑफ स्टाइल में जो है दोनों पैर पे टेक लिया जाता है। और फिर जैसे कि वेस्टर्न रोल ऑफ स्टाइल है तो पग अने बे हाथ, यानी पग और दोनों हाथ और पैर के ऊपर क्या कहते टेक लिया जाता है। तो इस तरह से जो है अलग अलग स्टाइल की जो अलग अलग लैंडिंग भी होती है। लैंडिंग इन सीजर स्टाइल इज डन टू टेक ऑफ लेग्स ऑफ समटाइम्स ऑन बोथ द लेग्स। In Eastern Scots style, it is on the take of leg. In Western rolling style, is on take of leg and both hand parallel to crossbar. In straddle style, it is on free legs and both arms and them rolling on free leg side in the pit. And Fosbury flops style landing is done on the back and the shoulders. यानी जो यहाँ पे सीजर स्टाइल में क्या दिया है कि पैर का टेक लेते हैं, और फिर ईस्टर्न कट में जो है दोनों पैर का टेक लिया जाता है। और फिर वेस्टर्न टेक में जो है दोनों हाथ दोनों पैर का टेक लिया जाता है। और फिर स्ट्रेडल स्टाइल में क्या कहते हैं दिया है कि लेग्स और आर्म्स के थ्रू टेक लिया जाता है। और फॉसबेरी स्टाइल जो है उसमें जो है क्या कहते हैं बैक और शोल्डर के थ्रू टेक लिया जाता है। अब यहाँ पे स्टाइल्स ऑफ बार क्लियरनेस इन हाई जंप, यानी जैसे मैंने आपको बताई कि यहाँ पे पॉइंट दिया है सीजर स्टाइल, ईस्टर्न कट ऑफ स्टाइल, वेस्टर्न रोल ऑफ स्टाइल, स्ट्रेडल स्टाइल, फॉसबेरी फ्लॉप स्टाइल, यानी यहाँ पर 5 स्टाइल दिए हैं। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट पॉइंट पे क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सीजर स्टाइल यानी कातर पद्धति। अप्रोच रन शुड बी इन सच अ वे सो टेक ऑफ लेग फॉल्स आउटसाइड द क्रॉसबार, देन एथलीट टचेस द टेक ऑफ मार्क फर्स्ट विद द heel, then toe of his take of leg takes off with the swing of hands and free leg and lifts the body in the upward direction. As athlete reaches at maximum height, take sitting positions over the crossbar, keeping both hand and leg straight forward. After this position, give momentum first to free leg take, then
then take off leg towards the pit and the lands of free leg or both the legs. While landing, to reduce force of body, the hands of toe as leg touches the ground, we bends the joints of leg in sequence. अब કાતર પદ્ધતિ એની સીઝર સ્ટાઇલ में ટેક પગ વાંસથી બહારની બાજુ આવે તે રીતે આગમ दौड़ करवी, यानी टेक जब लेना है तो इस तरह से दौड़ करना है कि हमारा जो लेग जो है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। टेक निशान पर टेक पगनी एड़ी पछी पंजा मुकी, यानी जो मार्क्स लगाते हैं वहाँ पे उस पर पहले एड़ी और फिर उसके बाद जो है पंजा टच करना होता है। हाथ અને મુક્ત પગના ઝોલા સાથે શરીરને ઉર્ધ્વ દિશામાં ઉચકાવે, यानी हाथ जो है वो एकदम फ्री कर देना होता है। વધુમાં વધુ ઊંચાઈ પર આવ્યા પછી વાસ પર બંને હાથ અને પગ આગળ सीधा रहे, यानी जब वो क्रॉस बार करने का होता है तो दोनों हाथ और दोनों पैर जो है ऊपर साइड दोनों सीधे होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर में। आ स्थिति बाद प्रथम मुक्त पग पछी टेक पगने खड़ा तरफ गति आपी मुक्त पग बन्ने पग पर उतरण करवामा आवशे, यानी क्रॉस बार करने के बाद जो है ये स्थिति में जो है दोनों पैर के थ्रू जो है टेक ऑफ लेना पड़ता है, यानी लैंडिंग करना पड़ता है। उतरण समय शरीरનો ધક્કો ઓછો કરવા પંજા પર ઉતરણ કરવું તથા જમીનને પગનો સ્પર્શ થાય ત્યારે પગના નજીક सांधा क्रमश वड़वा, यानी जब लैंडिंग करना पड़ता है तो हमको हमारा सबसे पहले जो है पंजा हमारा जो होता है वो ज़मीन पे टच होना चाहिए। The style is not more effective because while clearing more high positions of the body over the crossbar plays very important role. In this style, positions of the body over the crossbar in sitting, so to lift and trunk more energy is spent and more parts of the body fall between crossbar and center of gravity of the bodies, so to gain more heights this style is not effective. આ પદ્ધતિમાં વધુ અસરકારક નથી, કારણ કે વધારે ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે વાંસ પરની શરીરની સ્થિતિ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે, यानी ये स्टाइल जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती है क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। इसके लिए बॉडी का जो पोजीशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। આ પદ્ધતિમાં શરીરને વાંસ પરથી સ્થિતિ બેઠકની આવતી હોવાથી માથા અને ધડને ઉચકાવવામાં વધારે શક્તિ ખર્ચાય છે, यानी बांस के ऊपर यानी अपनी बॉडी को पूरा हाई जंप करना पड़ता है, तो इसके लिए माथा और हमारे बॉडी का जो एनर्जी है वो ज़्यादा वेस्ट होती है तथा वास અને શરીરના ગુરુતત્વ મધ્ય બિંદુ વચ્ચે શરીરનો વધારે પ્રમાણમાં ભાગ આવે છે, જેથી વધારે ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ પદ્ધતિ ઉપયોગી નથી। तो इस क्या कहते हैं ये स्टाइल जो है हमारे लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पॉइंट देखेंगे। ओके, बाय।